Sunday. You know, like 4 Gospels, जो चारों इंजीलें हैं, वहाँ पर 3, Matthew, Mark, Luke, they don't talk about palms. They talk about branches, you know, दरख्तों से डालियाँ तोड़कर लोग लेकर आए और खुदा के आगे बिछा रहे हैं, कुछ लहरा रहे हैं. But only John, यूहन्ना ही जो है, यूहन्ना कहता है कि लोगों ने दरख्तों से खेतों में से डालियां काटकर खुदा उनके आगे. But mostly we see, you know, वो जब स्टोरी शुरू होती है तो it starts with the donkey. You know, we cannot call it a donkey Sunday. Can't call donkey Sunday. So, but we can call other things also. But we, you know, it's good. It's good. Palms, they just palms जो हैं, खजूरें जो हैं, खजूरों की डालियां जो हैं, ये विक्ट्री को ज़ाहिर करती है. हालेलुया. I mean, फतहमंदी को, रासबाजी को, और you know, कलाम में लिखा, बाइबल में लिखा है कि सादिक जो है, righteous person is like a tree of, you know, date tree, palm tree, खजूर के दरख्त की मानिंद है, righteous, रास्तबाज जो है. So let's bow our heads and just concentrate what we are celebrating today. We are celebrating a triumph, victory, entry of our Lord Jesus Christ, the King of Kings, into Jerusalem. But let's imagine, visualize in faith that Jerusalem means house of peace. This place, this sanctuary, when we get together, हम जब खुदावन के घर में आते हैं, उसके भवन में, उसके मंदिर में, उसके मकदिस में, उसके मस्कन में आते हैं, तो वो भी सलामती की जगह बन जाती है. I mean, that becomes a place of peace. That becomes a peaceful place in the presence of God. खुदावन की जो हुजूरी होती है. तो let's have faith. हम खुदावन पर ईमान रखेंगे कि वो आज अपने लोगों में यहाँ पर आया है, इस जगह पर आया है, इस जगह पर, इस भवन में, इस मस्कन में, इस मंदिर में, इस जगह पर वो आया है. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. खुदावन तेरा शुक्र हो. हम खुदावन यीशु, हम तुझे वेलकम करते हैं. खुदावन, हम तुझे वेलकम करते हैं, अपने दिलों में वेलकम करते हैं, अपनी खुदावन इस घर में वेलकम करते हैं, खुदावन पाकरू को वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा को वेलकम करते हैं. We welcome the Holy Spirit right now in this place, Lord, so that we can all go home with peace, because the Prince of Peace has come, the King of Kings has come. किसी को शिफा की, चंगाई की जरूरत है तो चंगाई देने वाला आया है, शांति देने वाला आया है, नजात, उद्धार, मुक्ति देने वाला आया है, बरकत देने वाला आया है, छुटकारा देने वाला आया है, और वो यहां मौजूद है. उसका जलाल यहां बह रहा है. His glory is flowing in this place. उसकी महिमा यहां बह रही है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless your word, Lord. Bless me, Lord, as I speak. Bless each and every one. खुदावन हर एक, हम अपने अपने कानों को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को खुदावन यीशु तेरे लहू से धोते हैं. हर किस्म की डिस्टॉर्शन, हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन, हर किस्म की उलझन, कोई ऐसा कोई ख्याल, ऐसी कोई भावनाएं, ऐसे कोई सोचें जो हमें खुदावन तुझसे दूर करें, तेरी सलीब को तकते हुए दूर कर दे हमें, या किसी भी वजह से हमारा ख्याल, हमारी सोचें, हमारे थॉट्स कहीं और ले जाए, उन तमाम तर तासीरों को, उन तमाम तर खुदावन हम स्पिरिट्स को बांधते हैं यीशु के नाम से. और सारी जगह पर प्रभु हम तेरा कब्जा मांग लेते हैं. हर माइंड पर, हर सोल पर, हर जान पर, हर रूह पर तेरा कब्जा होता है. खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे यीशु नाम में मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. प्रेज गॉड.
I welcome you again. सबके लिए I thank God for this place. We have a second Sunday here, which is we are celebrating, and I thank you for जो Christ United Methodist Church के हमारे कुछ members हैं, they are here attending church with us. And Jimmy Bhai, he was struggling. He was just running around to fix the sound today. I believe पिछले संडे से बहुत ज़्यादा फर्क है. I mean, praise God. So thank God. Amen. Jimmy भाई के लिए भी तालियां बजा सकते हैं. Praise God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jimmy's wife is here. Jimmy bhai's two children are upstairs. They are also, choir worshippers. They play. Elton plays guitar, or our daughter, she plays this big keyboard. Also worships, sings. Praise God. Thank you, Jesus. All right, let's go to other scriptures. Book of Luke. Last year we went through a book of Matthew for Palm Sunday, I believe. इस साल हम लूका की इंजील में चलते हैं. लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19 बाब, chapter 19. Luke chapter 19. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Chapter 19, and we'll go to verse 29. We'll start from verse 29 or 28. We can start from 28. यहाँ पर यूं लिखा है खुदा उनके कलाम में, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला. Verse 29, जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैतफिगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ. और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावन को इसकी जरूरत है. Amen. Azizo, we all know the Palm Sunday story, right? So let's look at it as a church. हम जो सब यहाँ पर मौजूद हैं और सारी दुनिया में जो भी इस वक्त, I praise God, I thank you, who all those people who are watching online on Facebook, YouTube. I just bless you, and I believe, I pray that you will all be blessed today as we go through the scriptures. जब हम इस कलाम पर गौर करते हैं, तो आप सबको खुदावंद बरकत देगा जो आज इस घर में आए हैं, खुदावंद के घर में, उसके मस्कन में उसकी इबादत की है, worship की है. Praise God for the worship team. I believe everybody was blessed. Amen. So praise God. Thank you, Jesus. Everybody was blessed. Thank you, Jesus. तो अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा है कि उसने जब वो बैतफिगे बैतनिया तक पहुंचा, जब यरूशलेम को वो जा रहे थे, तो उसने सब पहले 2 को भेजा, 2 अपने डिसाइपल्स को, अपने शागिर्दों को भेजा कि वो सामने के गांव में जाएं, और वहां पर जाकर यहाँ पर लिखा है कि उनको कहा कि जैसे ही तुम गांव के अंदर जाओगे, दाखिल होगे, एंटर होगे उस विलेज में, तो एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ. हालेलुया. जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उससे पहले वो यूज नहीं हुआ किसी भी काम के लिए. वो जो गधी का बच्चा है, डोंकी का बच्चा छोटा, वो कभी भी किसी, क्योंकि गधी के जो गधे थे, डोंकीज थे, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होते थे, और
सामान वगैरह गाड़ियां खींचने के लिए, फार्मिंग के लिए भी यूज होते थे, डिफरेंट उनके यूज थे। मगर ये गधी का बच्चा कभी किसी भी तरीके से उसको यूज नहीं किया गया, और वो सिर्फ क्योंकि खुदावन का ऐसा इंतजाम था कि खुदावन यीशु उसको सबसे पहले इस्तेमाल करे। आमीन। और वो गधी का बच्चा तो क्या सोचता होगा, उसको वो आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग, इमेजिनिंग कि वो क्या सोचता होगा कि अब मेरा टाइम आने वाला है कि मुझे बोझ उठाना पड़ेगा, मुझ पर कोई बैठ कर जाया करेगा, मुझे खेतों में लेके जाएंगे हल चलाने के लिए, तरह तरह की बातें वो शायद सोचता हो। जानवर भी सोचते हैं, एनिमल्स हैव माइंड्स, they can because they can see other that little donkey can see, वो देख सकता था या देखता भी होगा कि दूसरे जो गधे हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। I mean, उनको कैसे कैसे जो उनके मालिक हैं वो उनको कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। तो वो भी सोचता होगा मेरा कब दिन आएगा, मेरी कब बारी आने वाली है। तो बट अजीजो, यहां पर बड़ी मजेदार चीज है कि खुदा यीशु मसीह ने 2 को भेजा। आमीन। अजीजो, हम देखते हैं वी आर ऑल डोंकीज एक्चुअली। don't be offended, बुरा नहीं मनाना। हम सब ये गधी के बच्चे की तरह ही हैं, जिनकी खुदावन को जरूरत है। I mean, our Lord needs us. Praise God. But He always sent two by two. हम खुदावन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में पहले भी देखते हैं, लिखा है कि जहां जहां उसने जाना होता था वहां पर उसने अपने शागिर्दों को 2-2 करके भेजा। I mean, 2-2 करके भेजा ताकि वो जहां पर जाकर मुनादी करें, जगह तैयार करें और लोगों को खुदावन के पास, यीशु के पास लेकर आएं। I mean, so right now also this is also a time, सबसे पहले तो I always believe कि जब pastoral ministry हमें मिलती है, it's good। बहुत सारे हमारे अभी भी pastors हैं जो कंवारे हैं, जो शादीशुदा नहीं है, but they still have to have someone to go with them, amen, for ministry। और इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ हैं पास्टर्स, दे आर ऑलवेज दे आर सेंट 2 by 2। बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जिनकी वाइफ्स उनको सपोर्ट नहीं करती हैं। आई मीन, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं अकेले बेचारे लगे हुए हैं, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल। क्योंकि ये खुदावन यीशु मसीह का इंतजाम है कि किसी को सेव करना है, जिसकी खुदावन यीशु को जरूरत है, जरूर है कि उसके पास 2 को भेजा जाए और वो 2 जाएं और उसको खोल के लेकर आएं जो बंधा हुआ है। आई मीन, मे बी वो बंधा हुआ है अपने गुनाहों में, अपने पापों में बंधा हुआ है, या अपनी बिजीनेस में बंधा हुआ है, अपनी वर्ल्ड व्यूज में बंधा हुआ है, या अपने पर्सनल ओपिनियंस में, अपनी जो उसकी लाइफ है उसमें बंधा हुआ है, किसी नशे में बंधा हुआ है, किसी गुनाह में बंधा हुआ है। तो जरूर है कि खुदावन के लोग जाएं, और आज भी खुदावन भेजता है और आज भी लोग जाते हैं। खुदावन यही कहता है कि जाओ और उनको खोल के मेरे पास लेकर आओ। और अगर शैतान कहे या वो जिसने उनको बांधा हुआ है वो कहे कि कहां क्यों खोलते हो, उनको कह देना हम खोल इसलिए रहे कि यीशु को इसकी जरूरत है। हालेलुया। वो जाने देगा। जब यीशु का नाम लोगे, किसी को खोलोगे यीशु के पास लाने के लिए, वो जाने देगा, इब्लीस भी जाने देगा। आमीन, प्रेज गॉड। हम जब बीमारियों को डांटते हैं, दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं, सिचुएशंस को डांटते हैं ना, हमारे अपने अथॉरिटी से नहीं, हम यीशु का नाम लेते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, लेट इट गो, लेट माय पीपल गो, आमेन, लेट दिस डिजीज गो, लेट दिस इवल स्पिरिट गो इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। तो यीशु का नाम ही चलता है, मेरा और आपका नाम नहीं चलता। प्रेज गॉड। तो अजीजो, यहां पर 2 लोगों को उसने भेजा है कि खोल के ले आओ, और उन्होंने ऐसा ही किया। और यहां पर एक और
I'll just read one scripture from, we'll come back to book of Luke. मरकस की इंजील में मार्क चैप्टर 11, यही जो वाक्य है, all four gospels have the record of Palm Sunday event. मार्क चैप्टर 11, चारों अंजीलों में इसका जिक्र है. मार्क चैप्टर 11 and verse 4 लिखा है, पस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया. आमीन. वो गांव में दाखिल हुए, वो दोनों शागिर्द गए, और वो गए जब, तो बच्चे को क्या हुआ? बच्चे को दरवाजे के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे. मगर जो लोग वहां खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा, ये क्या करते हो? गधी का बच्चा खोलते हो. उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया. तो अजीजों, यहां पर मरकस इस बात का जिक्र करता है कि वो गधी का बच्चा एक दरवाजे के बाहर बंधा हुआ था, दरवाजे के पास बंधा हुआ था. और वो क्या जगह थी? वो एक चौक था, क्रॉसिंग थी, चौराहा था. अजीजों, हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं, बाहर दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, वो किसी ना किसी दरवाजे के पास बंधे हैं, मगर वो शायद किसी गलत दरवाजे के पास बंधे हुए हैं, क्योंकि असल दरवाजा यीशु है. प्रेज गॉड. द ट्रू डोर इज जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट इज द डोर, इज द डोर. तो वो शायद किसी गलत दरवाजे के पास लोग बंधे हुए हैं और चौक में बंधे हुए हैं, चौराहे में बंधे हुए हैं, क्रॉसिंग पे बंधे हुए हैं, और उनको वो ऐसे ख्यालों में, ऐसे बंदिश में हैं, ऐसी चेनों में बंधे हुए हैं, ऐसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं कि वो चौक में हैं, चारों तरफ रास्ते जा रहे हैं और उनको नहीं पता, वो शायद उस कंफ्यूजन में बंधे हुए हैं, खोए हुए हैं, गुम हैं, उनको नहीं समझ कि किस तरफ जाना है. इसीलिए जरूर है कि उनके पास कोई भेजा जाए जो उनको खोल के यीशु के पास ले आए, जो सही रास्ता है. हालेलुया. जो सही दरवाजा है. हालेलुया. प्रेज गॉड. अजीजों, चौक में बंधे हुए बहुत सारे लोग, चौराहे में, क्रॉसिंग में पर बंधे हुए हैं, गलत दरवाजे के पास बंधे हुए हैं. जरूर है कि मैं और आप जो इस बात को समझते हैं कि जीसस इज द राइट वे, जीसस इज द वे, जीसस इज द डोर, उनको खोल कर उसके पास ले आए. हालेलुया. सो दैट जीसस कैन राइड ऑन हिम, राइड ऑन देम. आमीन. वो करोबियों पर बैठकर सफर करने वाला वो हम पर सफर करे, हम उस यीशु के गधे बन जाएं. हालेलुया. यीशु हम पर सफर करे, हम जहां जाएं यीशु हमारे ऊपर जाए. आमीन. यीशु की अनॉइंटिंग, उसका मसा, उसका अभिषेक हम पर होकर सब जगह जाए. जहां पर भी हम जाएं, बाहर सड़क पर जाएं, किसी चर्च जाएं, दुकान पर जाएं, स्कूल जाएं, जॉब पर जाएं, जहां पर भी जाएं, यीशु का अभिषेक, उसका मसा, उसकी अनॉइंटिंग हम पर हो. प्रेज गॉड. उसको हमारी जरूरत है. अजीजों, उसको आपकी जरूरत है, हम सबकी जरूरत है. ताकि क्यों जरूरत है? ताकि उसकी वर्शिप करें, उसकी प्रेज करें, उसके सुसमाचार, उसकी गुड न्यूज, उसकी इंजील की मुनादी दुनिया में कर सके. जो लोग खोए हुए हैं, जो लोग बंधे हुए हैं, जो लोग गलत दरवाजों में के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं. आमीन. दैट्स व्हाट व्हाई वी हैव टू गो, वी हैव टू गो, एंड ही सेंड्स अस 2 by 2. प्रेज गॉड. हालेलुया. आगे चलते हैं. 37 वर्स में हम पढ़ते हैं, और let me read this and then we'll look at, concentrate on some verses. और उसके बाद क्या होता है? 31 वर्स से हम पढ़ते हैं. और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो,
तो यूं कह देना कि खुदावन को उसकी जरूरत है। सबके बोलेंगे खुदावन को मेरी जरूरत है। अपना कन्फेस करें, क्योंकि वी आर लुकिंग दिस स्क्रिप्चर एज अ चर्च, कि हम अपने आप को उस जगह पर लेकर आए। क्या हम वही गधे तो नहीं है जो अभी तक खोले नहीं गए, अभी तक बंधे में चौराहे में? क्या हम वो गधे तो नहीं है? उस गधे के साथ तो नहीं हम कंपैरिजन हमारा जो किसी गलत दरवाजे के पास बंधा हुआ है और अभी चौराहे में, चौक में बंधा हुआ है, जो अभी तक खोला नहीं गया? अगर हैं तो आज यीशु आज यहां पर मौजूद है और आप में से किसी ना किसी को इसी वक्त खोलना चाहता है, और वो कहता है कि मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, मुझे तेरी जरूरत है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यीशु को मेरी जरूरत है। आमीन। उन्होंने ऐसा कह दिया कि यीशु को उसकी जरूरत है। और अगर तुम 33rd वर्स, जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे कहा, इस बच्चे को क्यों खोलते? उन्होंने कह दिया कि खुदावन को इसकी जरूरत है, और उसको यीशु के पास ले आए। हालेलुया, यीशु के पास उसको ले आए। हम में से कौन कौन यीशु के पास आ चुके हुए हैं? आमीन। हम सब यीशु के पास आ चुके। अगर नहीं तो आज मौका होगा कि हम यीशु के पास आ जाएं। प्रेज गॉड, आज यीशु के पास आ जाएं और अपना आप उसको दे दें, अपना आप उसको सौंप दें। और यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी। आमीन। किसकी जमात? शागिर्दों की जमात। ठीक है, शागिर्दों, ऑल द डिसाइपल्स, जो उसके शिष्य थे, शागिर्दों की जमात, जिन्होंने उसके बहुत सारे मौजे, मिरेकल्स देखे थे, चमत्कार देखे थे, वो क्या करने लगे? बुलंद आवाज से खुदा की हम प्रेज करने लगे। उसकी प्रेज गॉड, खुदा की हमद करने लगे। और कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है, आसमान पर सुला और आलमे बारह पर जलाल। बहन भाइयों, मैं आपको यहां पर एक फर्क बताना चाहता हूं। शायद हमने सोचा ना हो कभी पहले। यहां पर एक फर्क है। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू, बुक ऑफ मार्क, बुक ऑफ जॉन, वहां पर तीनों जगह पर ऐसा लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब वो गद्दी पर बैठकर आ रहे हैं, लोगों ने लोगों ने अपने कपड़े गधे पर भी डाले, फिर उसको खुदावंद को बिठाया, और उसके रास्ते में भी फूल, पत्तियां, ब्रांचेस, पाम ब्रांचेस, वो सब कुछ बिछा रहे हैं, कपड़े भी बिछा रहे हैं अपने। पर यहां पर भीड़ के बारे में नहीं लिखा, वो क्राउड के बारे में नहीं लिखा हुआ, यहां पर डिसाइपल्स के बारे में लिखा हुआ है कि डिसाइपल्स जिन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स यीशु के देखे थे, साथ रहते हुए 3 इयर्स, 3 साल यीशु के साथ रहे, उन्होंने बड़े बड़े मिरेकल्स देखे थे। वो जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर एंटर होते हैं, तो ये बहुत बड़ी डिसाइपल्स का, जो भी खुदावंद यीशु मसीह के 12 डिसाइपल्स, तो दे वर इन द इनर सर्कल। उसका भी इनर सर्कल एक और था, पीटर, जॉन, 3, देयर वर 3 इनर सर्कल, फिर उसके आउटर सर्कल, जो टोटल 12 थे। पर अदर देन दैट और भी जीसस के जो डिसाइपल्स थे, दे वर लाइक 70 अदर डिसाइपल्स। तो वो भी वहां पर थे। एक बहुत क्राउड था, जो डिसाइपल्स सारे जिन्होंने मिरेकल्स देखे थे होते हुए यीशु के नाम से भी। आपको पता है, अगर आपने बाइबल में पढ़ा है, तो जीसस ने, जब यीशु ने
अपने डिसाइपल्स को भेजा था, वो 70 डिसाइपल्स को, तो उन्होंने वापस आके कहा, यीशु तेरे नाम से तो बदरूएं भी भागती हैं, बीमारियां भी अच्छी होती हैं। तो ये जीसस ने क्या कहा था उनको? जिनके नाम किताबें हैं आसमान पर लिखे हैं। आई मीन डोंट मार्वल दैट द डीमंस आर फ्लीइंग इन माय नेम। डोंट मार्वल कि तुम लोग हीलिंग करके आए और लोगों को ऐसा हुआ है सारा कुछ, बट जस्ट बी थैंकफुल। शुक्र करो कि तुम्हारे किताब में आसमान पर तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं। आई मीन प्रेज गॉड। तो अजीजों, यहां पर वो डिसाइपल्स, दे वर शाउटिंग विद जॉय, विद इन लाउड वॉइस। वो चिल्लाने लगे, ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से चिल्ला रहे हैं। और क्या चिल्ला रहे हैं? यहां पर चिल्ला रहे हैं कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। दिस मच फ्रेज इज इन ऑल 4 गॉस्पेल्स। ठीक है, सब जगह लिखा हुआ है मुबारक। Blessed is he who comes in the blessed is that king who comes in the name of the Lord. I mean वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। Praise God। मगर आगे का जो फ्रेज है वो सिर्फ यहां पर लिखा हुआ है, जो डिसाइपल्स के मुंह से सिर्फ निकल रहा है, दूसरे लोगों के मुंह से निकल रहा है क्या? होशाना, होशाना आलम बाला पर होशाना। आप बाकी 3 गॉस्पेल्स में पढ़ोगे, इंजीलों में, तो वहां पर होशाना लिखा हुआ है, जो हम भी सब गा रहे होते हैं होशाना। और होशाना का मतलब है, होशाना का मतलब है सेव नाउ। इट्स अ प्लीड ऑफ डिलीवरेंस, बचाए जाने की जो एक फरियाद है खुदावन के हुजूर में कि खुदावन अपना करम कर और बचा ले हमें। हैव मर्सी ऑन अस एंड सेव अस नाउ। दैट इज द मीनिंग ऑफ होशाना। होशाना का मतलब यह है कि खुदावन बचा ले, खुदावन बचा ले। पर ये शागिर्द जो ऑलरेडी बचाए गए थे, इनको होशाना के नारे लगाने की जरूरत नहीं थी उस वक्त। हालेलुया। हम शायद हम वो ट्रेडिशन को लेकर चल रहे हैं कि हम हर वक्त, हम पाम संडे पर, अगर वैसे नहीं तो पाम संडे पर जरूर होशाना के नारे लगाते हैं। उसका मतलब हम शायद अभी तक बचाए नहीं गए हैं। वी आर नॉट सेव्ड येट। ऐसा ही है। maybe that's why we are shouting Hosanna. Till now we are shouting Hosanna. होशाना होशाना हम वो क्योंकि सारी भीड़ कह रही थी तो हम भी कह रहे हैं। I mean, but we don't, if you know the meaning of Hosanna, होशाना का मतलब पता हो, होशाना का मतलब पता अगर आपको है, तो शायद आप फिर जो शागिर्द नारा लगा रहे हैं, आप फिर वो नारे लगाओगे। I mean, वो शाउट करोगे, वो प्रेज करोगे। क्या है वो? मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। हालेलुया। प्रेज गॉड। How does it say in English? Let me read for you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Saying, blessed be the King that cometh in the name of the Lord. Peace in heaven. I mean, this is what the disciples are shouting. ठीक है, जो शागिर्द हैं वो कह रहे हैं कि आसमान पर सुलह, peace in heaven and glory in the highest. और आलम बाला पर क्या हो? जलाल, glory in the highest. This is what the disciples are shouting. We are shouting Hosanna, 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 same thing from 2000 years. Even the people who are saved, they are still shouting the same way. But these disciples, they knew, उनको पता था कि हम तो सेव हो चुके हैं, हम तो उद्धार पा चुके हैं, हमारी मुक्ति हो चुकी है, हम तो खुदावन यीशु मसीह में नजात पा चुके हैं। हमें खुदावन की इस तरीके से तारीफ करनी है कि आसमान में सुलह और आलम बाला पर जलाल। I mean, peace in heaven and glory in the highest. Praise God. Why? Because they remember when Jesus was born,
खुदावन यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तो when angel Gabriel came to the shepherds, I mean जो चरवाहों के पास, गडरियों के पास, जो जब्राइल फरिश्ते ने आके कहा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ वहां पर चरनी में पाओगे। तो लिखा है कि उसके साथ ही एक फरिश्तों की गिरोह, एक दूत, स्वर्ग दूत, एंजल्स, और एक बड़ा ग्रुप एंजल्स का आया और वो क्या कहने लगा? हालेलुया। आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। तो ये डिसाइपल्स को वो जो प्रेज थी, जो दूतों ने, एंजल्स ने की थी उस वक्त when Jesus was born, so they are asking for that peace in heaven, or peace with heaven, और जमीन पर वो जिनसे राजी हो उनके साथ सुलह, उनके साथ पीस। तो अगर जमीन पर पीस होगा तो आसमान में भी पीस होगा। अगर जमीन पर हमारी सुलह, हमारी शांति, हमारा पीस, हमारा मेल जोल जो है हमारे परमेश्वर के साथ, हमारे खुदा के साथ है, तो जरूर है कि उसी पीस में, उसी मेल मिलाप में हम खुदावन के पास भी आसमान में जा सकेंगे। अदरवाइज we will always be shouting, save us now, Hosanna, 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 save us now. It's nothing wrong. We can shout for other people. It's nothing wrong. Maybe the church is shouting Hosanna. शायद कलीसिया जो है होशाना, होशाना, अगर वो खुद बच गए हैं तो दूसरे लोगों के लिए शायद होशाना कह रहे हैं कि save them now, Lord save them now. बचा ले खुदावन, बचा ले, हमें बचा ले, हमें बचा ले। लोग हेल में जा रहे हैं, सेटन, शैतान उनको हेल में लेकर जाने के लिए पूरी ओवर टाइम कर रहा है वो। लोगों को हेल में लेकर जाने के लिए। बट अजीजो, हमें हमारी कोशिश है, करनी है हमने कि अगर कोई बंधा हुआ है तो उसको उस बंदी में से, उस कैद में से, उन चेनों में से उनको खोल कर यीशु के पास लेकर आएं, ताकि वो वहां ना जाएं। जिनके लिए हम अभी तक शाउट कर रहे हैं, बचा ले खुदावन, बचा ले, तो खुदावन चाहता है, खुदावन ने हमें भेजा है। उसने भेजा है। वचन में, बाइबल में ऐसा लिखा है, हम सबको पता है, हम सब ऐसा हम जानते हैं, लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हें चुना है और तुमको मुकर्रर किया है। क्यों मुकर्रर किया है? ताकि फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। यह पूरी आयत है। So he has chosen us to bear fruit and go and untie. अगर कोई उस गधी के बच्चे की तरह जो लोग बंधे हुए हैं उनको खोलकर यीशु के पास ले आए। Amen. Praise God. Hallelujah. That is the work of evangelism. Amen. हमारे जो यहाँ के पास्टर गैब्रियल, उन्होंने एक बुक लिखी है evangelism पर, मेरे पास है, अगर कोई लेना चाहे, पढ़ना चाहे तो he is after evangelism also. Praise God. तो that's what we are sent for. वो खुदावन ने हमें भेजा है. That is a great commission also. जो एक जो इरशाद आज़म है. All right, let's go a little further. तो आप सबको समझ आ गई कि शागिर्द जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। आमीन। और सारी भीड़ जो दूसरी भीड़ है वो ये कह रही थी कि होशाना, होशाना, आलमे बाला पर होशाना, ग्लोरी इन द हाईएस्ट। I mean, or Hosanna in the highest. But
the disciples are saying glory in the highest. Amen. Praise God. तो इस बात की ये बात फर्क तरीके से हमें समझनी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि why if we are his disciples we have to have a different mentality than the regular crowd. Amen. जिनको नजात की जरूरत है, जिनको मुक्ति की, उद्धार की जरूरत है, जिनको भी जरूरत है कि उनको कोई खोले, उनका ये जरूर शाउट करना जरूरत है, और हमारे लिए भी शाउट करना जरूरत है उनके लिए कि होशाना, लॉर्ड सेव देम नाउ, कम सेव देम नाउ. तो उसको खुदावंद यीशु मसीह को वो एक बादशाह के तौर पर रिसीव कर रहे हैं. एंड इट इज, आपको पता है जैसे कि जकरिया की, हम लोग जकरिया की किताब की स्टडी कर रहे हैं इन दिनों में. उसके 9th चैप्टर में 9th वर्स में हमने ये स्टडी किया था कि दैट इज द प्रोफेसी व्हिच इज बीइंग फुलफिल्ड दिस डे. वही नबूवत है जो आज जो पाम संडे के दिन जो है वो पूरी हो रही थी कि देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर बैठकर, एक लादू के बच्चे पर बैठकर अपने आप को हम्बल करके तो वो आ रहा है. आई मीन, ओके, लेट्स गो फर्दर. 39 वर्स. भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे. ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे. रिब्यूक देम. उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे. हालेलुया, प्रेज गॉड. आज मुझे अरमान है कि कोई चुप नहीं था वर्शिप जब हम कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे. हालेलुया. अदरवाइज ये सब पत्थर पुत्तर, ये दीवारें, लकड़ियां, ये सारे सब कुछ चिल्ला उठे कि अगर हम प्रेज ना करें. अजीजो, यस, मेक श्योर जब खुदावन के घर में आए तो कोई, जब स्पेशली जब वर्शिप का टाइम होता है, कोई जुबान बंद ना रहे, कोई जुबान खामोश ना रहे. आई मीन, अदरवाइज खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, which he means Psalm 148 में हम पढ़ते हैं, it's this phrase, this saying is an echo of Psalm 148. 148 ज़बूर में ऐसा लिखा है ना कि खुदावन का बंदा कहता है, पहाड़ों को भी, दरख्तों को भी, दरियाओं को, चिड़ियों को, मछलियों को, हर चीज को खुदावन का बंदा कहता है कि उस खुदावन की प्रेज करो, उसकी हमद करो. I mean, उसकी हमद करो. Psalm 100, if you read Psalm 148, so that echoes this के all creation, हम भी creation है, we are also creation. I mean, हम भी creation है, पर हमें खुदावन, we read in the book of Isaiah कि हमें उसने क्यों बनाया है? अपनी हमद के लिए, अपनी प्रेज के लिए. प्रेज गॉड. हमें खुदावन कहता है, मैंने इन लोगों को अपनी हमद के लिए बनाया है, अपनी प्रेज के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपनी स्तुति करने के लिए मैंने इनको बनाया है, मगर इन्होंने अपने अपने रास्ते चुन लिए हैं अलग अलग. प्रेज गॉड. तो अजीजो, जरूर है कि हमें उसने अपनी प्रेज के लिए बनाया, हम ही हमद करें. हालेलुया. जो बचाए जा चुके हैं, जो खोले जा चुके हैं, वो तो चुप रह नहीं सकते. ऐसा ना हो कि दो और जो क्रिएशन है वो भी खुदा उनकी प्रेज करनी शुरू कर दे, और क्रिएशन भी करती है प्रेज, पर आपकी जगह ना ले. हालेलुया. आपकी जगह ना ले क्रिएशन, दूसरी क्रिएशन जो है. प्रेज गॉड. बिकॉज यू आर सपोज टू प्रेज हिम, नॉट द स्टोन्स, not the trees, but we read, especially in book of Isaiah we read कि जानवर भी, परिंदे भी, सब उसकी प्रेज करते हैं सुबह सुबह उठ के. प्रेज गॉड. इंसान भूल जाते हैं, sometimes we forget to praise him, but the animals, birds, they don't forget. All right, so पत्थर भी चिल्ला उठेंगे. जब नजदीक आकर शहर को देखा, verse 41, देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, दूर हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझसे तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई. फिर वो हैकल में जाकर
बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया है। अजीजों, यहां पर जो 41 वर्ष में लिखा है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खुदावंद जब हमारी वो हालत देखता है, जब हम दुआ के लिए बैठते हैं, उसके घर में भी आते हैं, उसकी प्रेज करने के लिए आते हैं, इबादत करने के लिए आते हैं, या रेगुलर वी आर लिविंग द लाइफ, खुदावंद जब हमें देखता है ऐसी हालत में कि हम अभी तक बंधे हुए हैं, अभी तक बॉन्डेज में हैं, और अभी तक हमने उसको स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, हमने कबूल नहीं किया, उसको अभी तक पहचाना नहीं अपनी जिंदगी में, तो ही ग्रीव्स, वो बुझ जाता है। होली स्पिरिट जस्ट ग्रीव्स। समटाइम्स बाइबल में जैसे लिखा है कि रूह को ना बुझाओ, रूह को ना बुझाओ। He quenches just that fire in us that quenches. वो बुझ जाती है, रंजीदा होकर वो बुझ जाती है आग। इस वक्त यहां जैसे लिखा है कि जब वो शहर के नजदीक पहुंचा, you can see, वो में से जो हम यरूशलेम गए हैं, इस्राएल गए हैं, हमें पता है जब जैतून का पहाड़ है, जो माउंट ऑलिव है, वहां से जब नीचे यरूशलेम की तरफ जाते हैं, इट्स अ डीप वेरी डेंजरस स्लोप, ढलान है, और ऊपर से जब हम देखें तो सामने ओल्ड सिटी यरूशलेम है सारी, तो ऊपर से फिर नीचे इस तरीके से, अब तो अच्छी पक्की जगह बन गई, उस टाइम पे तो और वो डेंजरस पैथ होगा, मिट्टी का ही होगा, अभी तो सब पक्का है। पर खुदावंद यीशु मसीह जब उस शहर के नजदीक पहुंचे तो लिखा है वो उस पर रोया। There is another place जहां पे लिखा है कि वो रोया, कहां पे किसी को याद है? लाजरस की कब्र पर। लाजरस की कब्र पर जब लोग भी रो रहे थे, लाजरस की बहनें भी रो रही थी, और यहूदी जो थे वो भी रो रहे थे, तो यीशु ने कहा कि वो कहां रखा है उसको। जब सब रो रहे थे तो लिखा है वहां पर कि खुदावंद यीशु के भी आंसू जो हैं बहे, his tears flow। तो वहां वो जो रोया है, कि इंग्लिश में लिखा जीसस वेप्ट, वो रोया, जैसे यहां पे लिखा जीसस यीशु रोया, तो वो रोना और ये रोना में जो ग्रीक वर्ड है वो डिफरेंट है। उस रोने का जो वर्ड है वो है खलेओस, जो कि ये जो रोना है क्लेओस, इसका मतलब है कि ही सॉब्ड। वो लिटरली जैसे कोई रोता है ना, किसी का कोई इस तरीके से होता है कि बहुत ही दुख हुआ है, उस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम शहर को देख के रोए हैं। पर वो जो लाजरस की कब्र पर, वहां पर रोना खुदावंद यीशु मसीह के वहां लिखा ना, उसका वो है डैक्रुओ, डी से है डैक्रुओ। उसका मतलब है आंसू, सिर्फ आंसू बहे थे। कोई दुख गम होता है और खुदावंद यीशु मसीह के आंसू, देयर आर डिफरेंट, जो भी उसकी इंटरप्रिटेशन करे कि शायद खुदावंद यीशु मसीह इसलिए रो रहे थे, इसलिए उनके आंसू निकले कि वो सोचे थे कि देखो इन लोगों का ईमान नहीं है, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसने अंधों को अच्छा किया है, लंगड़े चलाए, मुर्दे और भी जिंदा किए, तो ये इसको नहीं बचा सका। तो जीसस ऑल्सो, उस खुदावंद यीशु के थोड़े आंसू निकले और पूछने लगे कहां रखा है, चलो
उसको मुझे दिखाओ कहाँ है। तो बट यहां पर जब यरूशलेम को देखा है तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह रोए हैं, और लिटरली जैसे रोना होता है ना, सॉबिंग, उस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह रोए हैं शहर को देख के। वो इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तू काश के तू इस दिन में सलामती की बातें जानता, अगर अब वो तेरी मगर अब वो तेरी आंखों से ओझल हैं। दैट डे, इफ खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस दिन जिस दिन अब मैं जब आया हूं, तू सलामती की बातें जानता, तू शहर जो यरूशलेम है, सारे यहूदी लोग हैं, ये मुझे पहचानते कि आई एम द मसाया, आई एम द किंग ऑफ किंग्स, आमीन। काश के तू पहचान लेता, काश के तू जान लेता। और जिस दिन तुझ पर, और जो 44 वर्ष में लिखा है, दैट यू शुड हैव recognized the time of your visitation, कि खुदा तुम्हारे दरमियान में उतरा हुआ है, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है, मगर तुमने नहीं पहचाना, तुमने नहीं पहचाना। You know, अगर in NIV it says you should have recognized the time of God's coming to you। खुदा तुम्हारे दरमियान में आया है, खुदा तुम्हारे पास आया है। और NKJV में लिखा है कि you should have recognized the time of your visitation, के खुदा तुम्हारे पास आया है, विजिट, तुम्हारे खुदा तुम्हें विजिट करने के लिए आया है। अजीजों, आज मैं यहां पर आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं, जो कि आखिर में यहां पर लिखा है, जो हमने पढ़ा है कि फिर वो जाकर, लिखा है 45 वर्ष में, फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा और तुमने इसको डाकुओं की खो बना रखा है। आई मीन अजीजों, डाकुओं की खो बना रखा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आइए सब खुदावन की हुजूरी में खड़े होते हैं। आई मीन सब खुदावन की हुजूरी में खड़े, लेट्स ऑल राइज, लेट्स ऑल राइज। अगर हमारी जिंदगी में आज, अगर आप पहचानते हैं, अगर आप बंधे हुए हैं आज चौराहे में, और यू आर स्टिल कंफ्यूज विच वे टू गो, जीसस वांट टू सेट यू फ्री। आमीन। खुदावंद आपको आजाद करना चाहता है, खुदावंद आपको आजाद करना चाहता है। आज उसको बुलाएं कि वो आपको आजाद करे, आपको उन चैनों से छुड़ाए। आज अपने आप को उस गधी के बच्चे की जगह देखें, अगर आप भी बंधे हुए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कहा है कि आकाश के तुम इस बात को पहचानते, I wish you have recognized me that I'm in your midst. Amen. आज खुदावन, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां मौजूद हूं। If you know in this faith that Jesus is here, तो आज उसको recognize करें, आज उससे कहें, अगर आप बचाए नहीं गए तो आज उससे कहें मुझे बचा ले। होशाना, होशाना, बचा ले खुदावन, आज बचा ले। और अगर आप किसी और को जानते हैं जो बचाया नहीं गया, उसके लिए होशाना कह सकते हैं कि खुदावन आज उनको बचा ले, मेरे भाई को बचा ले, मेरी बहन को बचा ले, मेरे मामा को बचा ले, मेरे पापा को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले। होशाना लॉर्ड, होशाना इन द हाईएस्ट, कि जमीन पर वो बचाए जाएंगे तो आसमान में भी वो बचाए हुए पहुंचेंगे। हालेलुया। इन द बुक ऑफ रेवलेशन, इन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 में हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि लिखा है, यूहन्ना कहता है कि आई सॉ अ बिग क्राउड, अ बिग मल्टीट्यूड। मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी जो सफेद जामे पहने हुए थी और उनके हाथों में खजूरों की डालियां थी। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओह brothers and sisters, we want to be in the crowd, in that crowd. Oh hallelujah। आज खजूर की डालियां देकर जो हम लहरा रहे हैं, हम अपना फ्यूचर भी देखें। सफेद जामे पहने हुए खुदावन की हजूरी में, खुदावन के जलाली तख्त के सामने खड़े हुए, हमारे हाथ में खजूर की डालियां हैं। Hallelujah। In that big crowd, what John saw in heaven। Hallelujah, praise God। उस सुलह में जो आसमान पर हमारी सुलह है, उस प्रेज में जो आसमान पर वो सफेद व्हाइट रोब्स में खजूर की डालियां हाथ में लिए हुए उस बर्रे के तख्त के आगे, we are shouting peace, peace in heaven। Hallelujah, peace in heaven, praise God। अजीजों,
और लिखा है कि खुदावंद ने जाकर हैकल में से वो बेचने वालों को, वो जो नाजायज कारोबार कर रहे थे, उनके तख्ते पलट दिए, उनको उसने निकालना शुरू किया। हालेलुया। तो brothers and sisters, we are the temple of the Holy Spirit. We are the temple of God. हम खुदावंद का मकदस हैं, हम खुदावंद की हैकल हैं। और आज किसी के अंदर, किसी की जिंदगी में, किसी की लाइफ में कोई वायलेशन हो रही है, आज tonight, today, this evening, खुदावंद यीशु मसीह उस वायलेशन को दूर करना चाहता है। वो कहता है कि तुमने डाकुओं की खो बना दिया है। तो डाकू कौन होता है? रॉबर, चोर। और यीशु कहता है कि चोर नहीं आता क्या करने? चोर आने। Thief comes to steal, to kill you, to destroy you. चोर नहीं आता चोरी करने, हलाक करने, मार डालने। And I have come, मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। I have come that they may have life and life in abundance. Hallelujah. आज आपको खुदावंद यीशु जिंदगी, कसरत की जिंदगी देना चाहता है। वो हर किस्म की वायलेशन जो चोर, जो इब्लीस ने आपकी जिंदगी में कर रखी है, नाजायज कारोबार, आज खुदावंद उसको निकालना चाहता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हम सब अपनी आंखें बंद करके, हाथों को उठाकर हम खुदावंद से कहेंगे, यीशु मसीह